Hello students, good morning. Today we are going to study standard 3rd EVS chapter number 18 games we play. Okay, so here first of all you see the video of hopscotch, how to play hopscotch. इस चैप्टर में जो है बच्चे हैं वो हॉपस्कॉच खेल रहे हैं, तो सबसे पहले हम हॉपस्कॉच कैसे खेलते हैं वो सीखेंगे. ओके, फिर हम चैप्टर पूरा पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Good morning, Meenu. Good morning, Chinu. What are you both doing? Good morning, Buzz. We are playing. You are playing? I thought you were jumping. And that too on one leg. Why are you jumping on one leg? Buzz, don't disturb me now. Buzz, don't disturb Chinu. Come here. I will tell you. We are playing a game. This game is called hopscotch. Hopscotch? Chinu, I know the name of this game now. Hopscotch, hopscotch, hopscotch. Chinu, you are out. You are out. See, you stepped on the line. Oh, who is that? Good morning, everybody. I am Rabbit. Good morning, Rabbit. How did you know that Chinu was out? Do you know how to play hopscotch? Oh, yes, Meenu. I can play hopscotch very well. You see, I can hop and jump very well. I know, Rabbit. You can hop and jump very well. I was also jumping well. I got out because of Buzz. He was shouting near my ear. That's why I got out. I am sorry, Chinu. I did not know that you could get out. How did you get out? Why are these numbers written here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Please teach me this game. Okay, Buzz. Just watch me carefully now. First, I will throw the marker on this first box. See, it is marked 1 in this box. Wait, Meenu. A marker? But this is a thin stone. Oh, Buzz. We use the stone as a marker. See, Meenu has thrown the marker in the first box. The marker should fall inside the box. If the marker touches the line when it falls, then Meenu is out. Oh, when you throw the marker, it should fall inside the box. It should not touch the line. Meenu's marker has fallen inside the box without touching the line. So, she is not out. Yes, Meenu is not up. Now, she has to jump over the first box and go to the next box. But she has to jump with only one leg. Oh, Meenu cannot jump into the box that has the marker. That's right, Buzz. I cannot jump into box number 1. I have to jump over it. I have to keep jumping till I reach the end. I can jump only on one leg, but where there are 2 numbers written in 2 boxes,
next to each other, I can put both my feet down, like 4 and 5 and 7 and 8. Oh, so you can put both your feet down in 4 and 5 and 7 and 8. Meenu, can you jump and show me, please? Oh, Meenu, can I jump and play this game, please? You see, I can hop and jump very well. Buzz can watch me jump and learn the game. Okay, Rabbit, you can also join the game. Start jumping now. Hey, Buzz, keep watching Rabbit's feet carefully. If it touches any line, then Rabbit is out. Look, I have reached the end. Now I have to turn and come back, just like the way I went. See children, when rabbit is turning back, he is going to Now, pick up the marker Rabbit again. has to bend down With one leg and only. pick up the marker also. See here. But line should not be touched. Oh, the game has finished. Rabbit, did you win it? Buzz, the game is not over. Now Rabbit has to throw the marker in box number 2. Again, Rabbit has to hop the same way. Oh, now I know. Rabbit has to jump over box number 2. It cannot step on it. समझ में आया? तो जिस बॉक्स में मार्कर जा रहा है उसमें जंप नहीं करना है. कैसे खेलते हैं हॉपस्कॉच देखो सही से. देखो अभी वो सेकंड नंबर से बॉक्स पिकअप करेगा और फर्स्ट पे जंप करेगा, है ना? That's right, Buzz. You have learned the game fast. All the children were playing hopscotch in the lane. Avantika and her sister Nandita were also playing. सारे बच्चे गली में हॉपस्कॉच खेल रहे थे. हॉपस्कॉच जिसे स्टापू भी कहते हैं. अवंतिका और उसकी सिस्टर नंदिता भी खेल रही थी. But नंदिता was not able to play the game in the right way. नंदिता उस गेम को अच्छे से खेल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे वो गेम खेलना आता ही नहीं था. अवंतिका said, "Listen to me carefully, Nandita. Understand the game." अवंतिका बोली, नंदिता मैं तुम्हें समझाती हूँ कि गेम कैसे खेलना है. थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स. मार्कर ये जो होता है इसे मार्कर हिंदी में इसे ठिप्पी या ठिकरी भी कहते हैं. फर्स्ट नंबर वाले बॉक्स में मार्कर को फेंको. देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट बॉक्स. उसके बाद जिस तरह हम लंगड़ी खेलते हैं उस तरह एक ही पैर पर जंप करके नंबर 2 वाले बॉक्स में जाना है. नंबर 1 वाले बॉक्स को स्किप करना है. कीप इन माइंड यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्केड 4, 5 एंड 7, 8. टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स. तुम अपने दोनों पैर नीचे सिर्फ 4, 5 और 7, 8 वाले बॉक्स में ही रख सकती हो और ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे फीट किसी लाइन को टच ना करे. अगर तुमने उन लाइन्स को टच किया तो तुम आउट हो जाओगी. When you reach the last box, turn around. When coming back, pick up the marker and bring it back. जब लास्ट बॉक्स में पहुंच जाओगी तब जंप करके पीछे मुड़ जाना है, फिर जंप करना है और 4, 5 पर फिर से दोनों पैर रखना है. उसके बाद 3, 2 पर आपको एक पैर से जंप करना है. उसके बाद आपको मार्कर उठाकर वापस आना है. Now throw the marker in the next box. उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में मार्कर फेंकना है और सेम थिंग्स फॉलो करके आपको गेम खेलना है. सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्सेस वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम.
आगे भी आपको सेम करना है। नेक्स्ट बॉक्स में मार्कर फेंकना है और गेम कंटिन्यू रखना है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन सिंस लॉन्ग काकी आंटी वॉज वॉचिंग देम प्ले। बच्चों ने फिर से गेम खेलना स्टार्ट किया। काकी मीन्स आंटी उनको काफ़ी देर से देख रही थी। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम। शी कुड नॉट कीप हरसेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विद यू। बच्चों को इस तरह से खेलते हुए देखकर काकी का भी मन हुआ कि वो भी खेले और काकी ने उनसे पूछा कि क्या वो गेम खेल सकती है। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। जब काकी ने पूछा कि क्या काकी भी गेम खेल सकती है, ये सुनकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अवंतिका सेड काकी विल यू प्ले। अवंतिका ने पूछा आंटी से कि क्या आप भी खेलेंगी। काकी सेड डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच? एट योर एज वी प्लेड सो मेनी डिफरेंट गेम्स। काकी बोली कि तुम्हें लगता है कि मुझे हॉपस्कॉच खेलना नहीं आता? जब हम तुम्हारी एज के थे तब हम बहुत से अलग अलग गेम खेलते थे। नंदिता सेड विच गेम्स डिड यू प्ले काकी? नंदिता ने काकी से पूछा कि काकी आप कौन से गेम खेलते थे? काकी सेड लंगड़ी, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मैनी मोर। काकी बोली कि वो लंगड़ी, हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई, 7 टाइल्स इस तरह के बहुत सारे गेम्स खेलती थी। इन कबड्डी अवर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 विलेजेस। 10 गांव में से उनके कबड्डी की टीम ही सबसे बेस्ट टीम थी। रजत सेड चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। रजत बोला चाची आपको इतना सारा टाइम कैसे मिल जाता था? हमें तो बहुत मुश्किल से खेलने के लिए टाइम मिलता है। काकी सेड यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। काकी बोली कि तुम लोग तो पूरा दिन टीवी देखने में बिजी रहते हो, इसलिए तुम्हें खेलने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। नंदिता सेड काकी डिड काका अंकल प्ले दिस गेम्स टू? नंदिता ने पूछा कि क्या अंकल भी ये सारे गेम्स खेलते थे? काकी सेड योर काका सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड so many other games the whole day. While flying kites, he would even forget his meals. काकी बोली कि अंकल तो बहुत सारे गेम्स खेलते थे जैसे मार्बल्स, 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा और वो पतंग भी उड़ाते थे। अंकल तो पतंग उड़ाते उड़ाते कभी कभी तो खाना खाना भी भूल जाते थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो है मार्बल्स यानी कि कंचे, इस तरह सर्कल बनाकर उनमें मार्बल्स रखते हैं और फिर इस तरह उसे दूसरे कंचे से मारकर फेंकते हैं। गांव में अभी भी बच्चे इस तरह के गेम्स खेलते हैं। नेक्स्ट है 7 टाइल्स। इस गेम में 7 स्टोन्स या टाइल्स को एक दूसरे के ऊपर बैलेंस करके रखा जाता है। दूसरी टीम का प्लेयर पत्थर मार के इन टाइल्स को गिराता है, फिर सब प्लेयर्स को आउट करने के लिए दौड़ता है। तब तक दूसरी टीम के प्लेयर्स उन टाइल्स को फिर एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो बिना आउट हुए 7 टाइल्स को बैलेंस करके रख देते हैं तो वो टीम जीत जाती है। रेसलिंग यानी कि कुश्ती, हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई जो आप लोग हमेशा खेलते रहते हो, काइट फ्लाइंग, ये सारे गेम्स तो आपको पता ही है। नंदिता सेड काकी डू कम एंड प्ले। नंदिता बोली काकी आप भी हमारे साथ खेलिए। Kaki started playing with the children. They had been playing just for a short while when it started raining. काकी भी बच्चों के साथ खेलने लगी। वो थोड़ी देर खेले तभी वहाँ पर बारिश होने लगी, इसलिए सारे बच्चे सैड हो गए। काकी said, "Let us go to my house. We will play inside." काकी बोली कि चलो मेरे घर पर चलते हैं, हम वहाँ खेलेंगे। The children were happy to hear this. ये सुनकर बच्चे बहुत ही खुश हो गए। All the children said, "Come on, let us go to Kaki's house to play." सारे बच्चे बोलने लगे कि चलो चलो हम काकी के घर पर जाकर खेलते हैं। The children came to Kaki's house. Inside the house, Kaka and Foy were playing chess. बच्चे काकी के घर पर गए तो वहाँ पर काका और जो फोई थी वो चेस खेल रहे थे। अवंतिका said, "What should we play?" अवंतिका बोली कि अब हम कौन सा गेम खेलते हैं। रजत said, "Let us play Doll's House, घर घर." रजत बोला कि हम डॉल्स हाउस मीन्स घर घर खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रन सेड यस लेट्स प्ले डॉल्स हाउस घर घर। रजत की बात सुनकर और भी बच्चे बोले कि हाँ हाँ चलो घर घर खेलते हैं। रजत सेड इफ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विद इट। रजत बोला कि अगर हमारे पास डॉल होती तो हम उसके साथ खेलते। काकी सेड डू यू वांट अ डॉल? लेट अस मेक वन राइट अवे। काकी बोली कि तुम्हें डॉल चाहिए तो चलो हम अभी बनाते हैं।
Kaki took out some old cloth. With Kaki's help, children made a doll. काकी ने कुछ पुराने कपड़े निकाले और काकी की हेल्प से बच्चों ने उन पुराने कपड़ों में से डॉल बनाई. Some children wanted to play carom and others ludo. They formed groups and started playing. कुछ बच्चों को कैरम खेलना था तो कुछ बच्चे लूडो खेलना चाहते थे, तो उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए और खेलना शुरू किया. ओके स्टूडेंट्स, सो यू लर्न द स्टोरी. यस, सो समझ में आया स्टोरी. हमने डिफरेंट गेम्स के बारे में पढ़ा. यस और नो? इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. सो यू प्ले, विच गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड? यू प्ले लंगड़ी, खो खो. ओके, सो दिस गेम्स यू प्ले आउटसाइड. और इनसाइड यू प्ले लूडो, स्नेक एंड लेडर्स. तो ये सारी गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं. तो तुम लोगों ने डिफरेंट गेम्स के बारे में पढ़ा. तो समझ में आया ना सबको चैप्टर? यस. नाउ ओपन योर वर्कबुक. सी हियर, पेज नंबर 145. चूज द करेक्ट आंसर्स. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न choose the correct answers. Okay, see, I have written here. In which game does the catcher have to raise one leg and chase the other player to catch them? So children, in which game you have to chase the player by raising one leg? Tell me. See here, options are there. First, A is kabaddi, B is langdi tang, C is hide and seek and D is wrestling. तो आप लोग क्या करते हो? लंगड़ी में एक पैर ऊपर करके और सबको आउट करने चाहते हो. यस और नो? सो हियर योर ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी. सो हियर इन द बॉक्स यू विल राइट बी एंड हियर यू विल राइट लंगड़ी टांग. ओके, समझ में आया? नाउ सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज प्लेड इन अ रिंग? तो रिंग में हम कौन सा स्पोर्ट प्ले करते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है. कौन सी गेम खेलते हैं? नाउ सी, ए इज हाउस, बी इज लूडो, सी इज रेसलिंग एंड डी इज 7 टाइम्स. सो दैट इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट? टेल मी. ऑप्शन सी. यस, वेरी गुड. सो ऑप्शन सी, रेसलिंग. नाउ सी नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स can be played indoor? तो हम कौन सी गेम्स इंडोर खेलते हैं? वन इज लूडो, सेकेंड स्नेक एंड लेडर्स. ओके, फिर तीसरी कौन सी गेम है? कैरम. और कौन सी गेम हम घर में खेल सकते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन देखेंगे. ए लंगड़ी टांग, तो वो तो हम कहाँ खेलते हैं? घर के बाहर. सो दैट इज आउटडोर गेम. हमें क्या पूछा है? इंडोर गेम है ना. विच गेम्स कैन बी प्लेड इंडोर? B is kabaddi. Kabaddi you can play inside? No, you have to play outside, that is on the ground. C is hide and seek and D is chase. Chase children you know, chase का chess board होता है और उस पे सारे उसके coins होते हैं. Okay, so here chase can be played indoor? Yes, you can play inside the house. So that is chess. Option D. Yes. Now see number 4. With what is the game of hopscotch played? तो hopscotch play करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मार्कर. Yes or no? You learned. तुम लोगों ने पढ़ा कि hopscotch कैसे पढ़ते हैं. तुम लोगों ने देखा भी कि बच्चे कैसे वीडियो में hopscotch खेल रहे थे. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है उसके लिए? मार्कर. तो देखो मार्कर कौन से ऑप्शन में है? ए मार्कर, बी बॉल, सी इज पीस एंड डी इज प्लेइंग कार्ड्स. तो प्लेइंग कार्ड्स तो कार्ड्स की गेम में होते हैं. हमें तो क्या चाहिए? मार्कर. सो दैट इज ऑप्शन ए, मार्कर. नाउ सी, विथ व्हाट इज द गेम ऑफ स्नेक एंड लेडर्स प्ले? तो स्नेक एंड लेडर्स प्ले करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तो उसका जो बोर्ड होता है वो, और दूसरा हम क्या करते हैं? डाइस घुमा के ऐसे गिराते हैं ना, फिर जो नंबर आएगा उतने नंबर हम चलेंगे, है ना. ऐसे हम स्नेक एंड लेडर्स प्ले करते हैं. देखो ऑप्शन में क्या है? बॉल, बी इज डाइस, सी इज प्लेइंग कार्ड्स एंड डी इज मार्कर. सो हमें क्या चाहिए? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? बी वाला. यस, सो दैट इज डाइस. For which of the
फॉलोइंग गेम्स डू वी यूज द रूफ ऑफ अवर हाउसेस? कौन सी गेम खेलने के लिए हम हमारे हाउसेस का रूफ्स का यूज करते हैं? रूफ्स मतलब क्या होता है? टेरेस। यस और नो चिल्ड्रन? तो कौन सी गेम हम टेरेस पे जाके खेलते हैं? क्या करते हैं हम उत्तरायण में? पतंग चगाते हैं। सो दैट इज फ्लाइंग काइट्स, है ना? उसके लिए रूफ की जरूरत होती है ना, टेरेस पे जाके काइट फ्लाई करते हो। सो दैट इज विच गेम? काइट फ्लाइंग। सी हियर इन विच ऑप्शन इट इज? A is hockey, B is गिल्ली डंडा, C is kite flying and D is खो-खो। तो कौन से ऑप्शन में है? C में। So C option is correct, kite flying. Now see, which of the following games does not need a ball? कौन सी गेम के लिए हमें बॉल की जरूरत नहीं पड़ती? A is volleyball, तो वॉलीबॉल खेलने के लिए हमें बॉल की जरूरत पड़ेगी। क्रिकेट, tennis and kabaddi. So cricket also you use bat and ball, both things. In tennis also you use ball and racket. Okay. So here D is kabaddi. kabaddi में ball की जरूरत पड़ेगी नहीं. So यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन D, that is kabaddi. Now see children, your next question is fill in the blanks. So see here. See children, in fill in the blanks, first number is dash is the national game of India. So children, हमारा इंडिया का नेशनल गेम्स कौन सा है? ये तुमने जीके में पढ़ा होगा शायद से कि नेशनल गेम इंडिया का कौन सा है. So that is hockey. Yes or no? So here you will write hockey. Okay. Now see number 2. The game played with a bat and ball is dash. तो कौन सी गेम में तुम बैट एंड बॉल का यूज करते हो? दो चीजों का. इट इज इन क्रिकेट. यस, वेरी गुड. सो हियर यू विल राइट क्रिकेट. नाउ सी नंबर 3 इज देयर इज अ किंग, अ क्वीन, हॉर्सेस, सोल्जर्स इन द गेम ऑफ डैश. तो कौन सी गेम में होता है ये सब? चेस बोर्ड में, है ना? चेस बोर्ड के ऊपर आप किंग, क्वीन, सोल्जर्स ये सब रखते हो, फिर आप चेस खेलते हो. तो कौन सी गेम हुई ये? चेस. सो हियर यू विल राइट चेस. नाउ सी नंबर 4. द गेम ऑफ 52 कार्ड्स इज नोन एज. कौन सी गेम बोला जाता है उसको जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं? कार्ड्स. ओके, इट इज अ गेम ऑफ कार्ड्स. नाउ सी नंबर 5. द वन दैट कैन फ्लाई एंड गो फार अवे विदाउट विंग्स इज अ डैश. जिसके पंख नहीं है फिर भी वो ऊंचे आसमान में उड़ सकता है. तो ये एक पजल की तरह है. तो बताओ, जिसके पंख नहीं है फिर भी वो आसमान में उड़ता है, तो वो कौन होता है? काइट, है ना? काइट फ्लाइंग की गेम में आप देखोगे काइट जो है ऊपर तक उड़ता है. तो काइट के पंख होते हैं? नहीं होता है. सो दैट इज काइट. है ना? पता है ना ये तो सबको. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट एंड रॉन्ग. So here number 1, in the game of snake and ladders, one can come down with the help of a ladder. तो लैडर की हेल्प से आप देखोगे स्नेक एंड लेडर्स में दो चीजें होती है. एक ऐसे लैडर बनी हुई होती है और एक ऐसे स्नेक बना हुआ होता है. यहाँ पे स्नेक होता है. तो आप नीचे आ जाते हो. जैसे 1 2 3 नंबर्स होते हैं. अगर आप 15 तक पहुंचे हो, 15 25 तक पहुंचते हो, तो अगर ये 2 पे लैडर है तो आप ऊपर चढ़ जाते हो और पहुंच जाते हो 26 पे, है ना? तो किसकी हेल्प से आप नीचे आते हो? लैडर की हेल्प से या स्नेक की हेल्प से? सांप काटता है जब स्नेक एंड लैडर्स में तो हम नीचे आ जाते हैं, है ना? पर लैडर की हेल्प से तो हम ऊपर जाते हैं. तो यहाँ पे क्या सेंटेंस दिया हुआ है कि लैडर की हेल्प से हम नीचे आते हैं. सो दैट इज रॉन्ग. सो हियर योर नंबर 1 विल बी रॉन्ग. नाउ सी नंबर 2. The game of लंगड़ी टांग is played in a circle made on the ground. लंगड़ी टांग के लिए हमें सर्कल बनाने की जरूरत पड़ती है? Yes or no? So that is no. So here also second one is wrong. Now see number 3. Turn the page. The game of house is played only by girls. सिर्फ गर्ल्स ही हाउस का गेम खेलती हैं, ऐसा है?
No, boys can also play. So that is also wrong. Now see number 4. Only 4 players are needed for the game of chess. Chess की games के लिए 4 players की जरूरत पड़ती है. So that is yes or no? No. Chess can be played only by 2 players. So that is also option wrong. Now see number 5. A ball is used to play a hopscotch. Hopscotch play करने के लिए हमें ball की जरूरत पड़ती है? No, we make circles like this and then we use marker. We throw marker in one circle and then we jump by raising one leg. So that is also wrong. Now see number 6. A large ground is needed to play a cricket. Cricket खेलने के लिए हमें अच्छे से बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है. So yes or no? Yes. So that is right. Now see number 7. In the game of hide and seek, all the children except Dan hide. Yes? Hide and seek में हम क्या करते हैं? सब लोग छुप जाते हैं ना? So that is also right. Okay. Now see your next question is match the following. Chess. Chess के लिए correct answer कौन सा है? चेस में क्या क्या होता है? किंग होती है, क्वीन होता है, एलिफेंट, हॉर्स, सोल्जर्स, ये सब होता है. सो ये ऑप्शन सी में है. तो यहाँ पे तुम लोग नंबर 1 में ऐसे सी लिखोगे और उसको सी ऑप्शन के साथ मैच करोगे. नाउ सी डी इज क्रिकेट और सेकेंड नंबर इज क्रिकेट. सो दैट इज क्रिकेट में हमें क्या चाहिए होता है? बॉल, बैट, स्टंप एंड फील्ड, है ना? अच्छा सा ग्राउंड चाहिए होता है. सो वो कौन से ऑप्शन में? देखो डी में. सो नंबर 2 विल बी डी. नाउ सी नंबर 3 हियर. स्नेक एंड लेडर्स. स्नेक एंड लेडर्स के लिए किस चीज की जरूरत होती है? स्नेक एंड लेडर्स का बोर्ड और डाइस. तो यहाँ पे बोर्ड वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है पर डाइस वाला है. तो वो कौन से में है? ई में. तो यहाँ पे ई लिखोगे. देन नंबर 4 इट इज सी हियर हॉपस्कॉच. हॉपस्कॉच के लिए हमें क्या चाहिए होता है? Marker. So that is in option B. So here you will write B. Clear update here children? Okay. So we will meet in the next lecture. Till then, bye bye.